پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعا جس کو پڑھ کر آپ اپنے سفر کو آسان کر سکتے ہیں، انہیں خطروں سے پاک سفر کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان اللہ پڑھیے بلند آواز سے مرد حضرات. سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل والولد. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب. اللہم هون علينا سفرنا هذا وادفع عنا بغضه. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. کٹ کرنے بولو. زیارت کر رہے ہیں، بیان چل رہا ہے، آپ ویڈیو کال کر لے کر رہی کٹ کرو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ہر ساتھی اپنے بازو والے ساتھی کو دیکھ کر مسکرا لے. انشاءاللہ اس سے سفر کی تکان بھی دور ہو جائے گی اور آپ کا سفر بھی آسان ہو جائے گا. کھلکھلاتے چہرے، مسکراتے چہرے جنتی چہرے ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری خوشیوں میں اور اضافہ فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر کی سیر و تفریح ہو رہی ہے. سیر و تفریح کی غرض سے نہیں بلکہ کچھ عبرت، کچھ نصیحت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت ہمارے گھروں تک لے جانا ہے. اللہم صلی علی محمد. محترم حضرات، ابھی آپ مدینہ طیبہ دنیا کا دوسرا سب سے بہترین شہر جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر تک اسی مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا. آپ کی زندگی کے جملہ 63 سال میں سے 40 سال بچپن اور جوانی کے مکہ مکرمہ میں گزرے. 40 سال سے 53 سال تک مکہ مکرمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی. توحید کے معنی کیا؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں، کوئی سجدے کے قابل نہیں. دنیا میں جو کچھ اچھا برا ہو رہا ہے سب یہ اللہ کی جانب سے ہی ہے. سیدھے ہاتھ پر دیکھیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے کی جو مسجد، آج جو مسجد ہے اس زمانے کا پورا مکمل شہر. بس کے بالکل سیدھے ہاتھ پر ایک مسجد تھی، ڈیمالش کر دی گئی. مدینہ منورہ کو بالکل نیا بنایا جا رہا ہے، بالکل لیٹسٹ سٹی، دنیا کا ورلڈ کلاس سٹی بنانے کی تیاری میں بہت ساری مساجد کو شہید کر دیا گیا. مسجد اجابہ کر کے تھی، اجابہ یجیب جی، اجابہ یجیب اجابتن کے معنی ہے دعا کی قبولیت کا مقام، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں قبول ہوئی. ایک دعا قبول نہیں ہوئی. ایک دعا جو قبول ہوئی، اللہ میری امت کو اٹ اے ٹائم ایک ہی بار میں سارے انسانوں کو ساری دنیا میں سیلاب نہیں آ جانا، پانی میں ڈبو کر نہیں مارنا، یہ دعا قبول ہو گئی. اور ایک دوسری دعا جو قبول ہوئی، اللہ میری امت کو قحط سے نہیں مارنا، بھوک سے نہیں مارنا. یعنی بھوک اور قحط، سیلاب دنیا کے کسی کونے میں آتا ہے تو ساری دنیا میں نہیں آ جاتا. کہیں سونامی آتی ہے تو پوری دنیا میں سونامی، ایسا نہ ہو کہ اللہ پوری سونامی پوری دنیا میں آ جائے، سارے لوگ ایک ہی ساتھ بھوک سے مر جائے، یہ نہیں ہونا. اور ایک ہی ساتھ پانی میں ڈوب کر نہیں مر جانا، یہ بھی نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 دعاؤں کو قبول کر لیا. تیسری اور آخری دعا جو آپ نے فرمائی وہ دعا تھی، اے اللہ میری امت کو متحد رکھنا، کیپ یونائٹڈ. یہ دعا قبول نہیں ہوئی. آج ہم لوگوں میں بس میں 50 لوگ بیٹھے، اتحاد کہاں ہے؟ بولیے، یکتائی کہاں ہے؟ نہیں ہے. تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی وہ قبول ہو گئی، جو قبول نہیں ہوئی
जीता जागता सबूत है। मदीने मुनव्वरा का नाम कुरान शरीफ में पुराना नाम क्या था? बोले या अहल यसरिब, ऐ यसरिब के लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, मदीने मुनव्वरा में कदम रखने से पहले 50 पर 3 साल की जब आपकी उम्र थी, तब तक मदीने मुनव्वरा का नाम क्या था? यसरिब। यहाँ से जो भी लोग गुजरते थे बीमार हो जाते थे। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉलेज में लाई गई, तो आपने यसरिब का नाम बदल के मदीना रखा। मदीने के एक्चुअल माने सिटी के, जैसा बेंगलोर सिटी कहते हैं, सिटी के माने में आता ये यानी सिर्फ सिटी। अगर आप मदीने मुनव्वरा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिटी करके बोले तो ये सिटी दुनिया का ये वाहिद सिटी है। सिटी के माने सिटी के भी है, शहर के भी है, और मदीना जो सिटी है ये मदीने तैयबा को सिटी कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र से लेकर 63 साल तक 10 साल इस्लाम की इमारत को बनाया, उसकी तामीर की। इस्लाम का फाउंडेशन कहाँ रखा गया? 13 बरस मक्के मुकर्रमा में रखा गया। फाउंडेशन क्या था? अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मदद के काबिल नहीं, सजदे के काबिल नहीं। जितनी भी नमाज है, रोजा, ज़कात, हज वगैरह जो कुछ फर्ज हुआ वो मदीने में आने के बाद हुआ। पहले ग्राउंड फराहम किया गया, साइट प्रिपेयर किया गया, उसका फाउंडेशन मजबूत किया गया। इस्लाम की बिल्डिंग का फाउंडेशन मक्के मुकर्रमा में तौहीद पर रखा गया। जब तक तौहीद मजबूत नहीं हो गई, फाउंडेशन मजबूत नहीं हुआ, नमाज रोजे का हुक्म मक्के में नहीं आया, आकाम नहीं आए। आकाम के माने क्या? शराब नहीं पियो, जुआ नहीं खेलो, शराब नहीं पियो, पर्दा करो, जानी और जानिया को संसार करो, जानी और जानिया को दुर्रे मारो, चोर और चोरनी का हाथ काटो। ये सारे अहकाम इस्लाम को जब एक पूरी तरह से सुकून मिल गया, मदीने मक्के मुकर्रमा में मुसलमानों को, इस्लाम को सुकून नहीं था, परेशान हालात थे, उनको मक्का छोड़ना पड़ा। काफिरों के जुल्म और सितम को बर्दाश्त ना कर सके तो अल्लाह के हुक्म से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे फॉलोअर्स के साथ कहाँ आ गए? बोलिए, मदीने मुनव्वरा मुंतकिल हो गए। 13 बरस इस्लाम के मदीने मक्के मुकर्रमा के, बाकी के 10 साल जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की इमारत को ऊंचा किया, बुलंद किया, तामीर फरमाई, उसकी फिनिशिंग की। ये देखिए सीधे हाथ पर ये जो छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं, ये जंगे उहद के मैदान में ये छोटी सी पहाड़ी जबले रमात कहते हैं इसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाइशों का सामना था। इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी हुई? बोलिए, हिजरत करने के बाद 17 रमजान, यानी कल 17 रमजान गया, 17 रमजान 2 हिजरी को जंगे बदर हुई। मक्के के लोगों ने, काफिरों ने क्या तय किया? बोलिए, अगर मुसलमान इसी तरह तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो हमारे सारे भाई जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, ये सब इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे और हम लोग तन्हा पड़ जाएंगे, हमारे बुतों की इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। ये तय करके उन्होंने जंग करने का इरादा किया, तो मदीने मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप 313 सहाबा किराम को लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए। 1000 काफिर मक्के से आ रहे थे। अबू जहल की लीडरशिप में जंगे बदर हुई। बदर के मकाम पर यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर जो इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, कुफ्र की और इस्लाम की जंग, तौहीद और शिर्क की जंग, उसमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक सजदे में डालकर दुआ की, ऐ अल्लाह हम 313 अफराद, मर्द, सारे मर्द लोग थे जंगे बदर में, और कोई औरत सहाबी नहीं थी, कोई उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अहलिया मोहतरमा आपके साथ नहीं थी जंगे बदर में, पूरे 313 सहाबा थे। ये बदरी सहाबा कहते हैं। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए जितने भी लाख सहाबा किराम, आपको सहाबा किसको बोलते हैं? जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा, उसको सहाबी। सहाबिया उस औरत को कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा। 313 ने 1000 काफिरों का मुकाबला किया। मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं, गरीब और मुफलिस मुसलमान, उनके पास कोई
हथियार भी नहीं, मजबूत टूटी फूटी तलवारें, लंगड़े लूढ़े, खच्चर, घोड़े, भाले वगैरह जो थे सब टूटी फूटी चीजें थी, लेकिन उनके पास ईमान का हथियार मजबूत था। मुसलमानों की ऐसी कमजोर हालत को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक जंग होने से एक रात पहले अपना सरे मुबारक सजदे में डाल दिया। सजदे में डालकर गिड़गिड़ाया और फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर आज ये तेरे 313 तेरा नाम लेने वाले अगर खत्म हो गए तो कियामत तक दोबारा तेरा नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का जोश वजद में आया। उसी सजदे की हालत में जिब्रील अलैहिस्सलाम खुशखबरी लेकर आए, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उठाइए अपना सर मुबारक। गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलक रहे हैं और फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह, इस कमजोर मुसलमानों पर रहम फरमाना, ऐ अल्लाह, कमजोर मुसलमानों पर रहम फरमाना। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसी सजदे की हालत में भेजा। क्या फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सरे मुबारक उठाइए। ऐ अल्लाह के हबीब, सरे मुबारक उठाइए, अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली। कल सुबह जब जंग होगी तो बशारत दी गई कि आपको फतेह और कामयाबी मिलेगी। कुफर पसपा होगा, जलील होगा, कुफर जलील होगा और फतेह और कामयाबी कदम आपके कदम चूमेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक अपने अल्लाह को नहीं मनवा लिया, एक ही सजदे में मनवा लिया और सरे मुबारक उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गए, या रसूलुल्लाह, अपना सरे मुबारक उठाइए, आप कितना गिड़गिड़ाएंगे इस उम्मत की खातिर, बस कीजिए, बस कीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह जंग हुई तो 313 ने 1000 काफिरों को मार भगाया। 70 काफिर शहीद हो गए, मर गए, 70 काफिर मर गए, 70 पकड़े गए, बाकी के लोग फरार हो गए। वहां पर अबू जहल, इस्लाम का सबसे नंबर 1 दुश्मन, छोटे छोटे 2 बच्चों ने, मुआज और मुअव्विज नाम के 2 बच्चों ने अबू जहल को मारा था। छोटे छोटे बच्चे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया, ऐ बच्चों, तुम जंग में शरीक होने के काबिल के नहीं हो। तो वो बच्चे ऐसा उठकर खड़े हो गए, ऐसा, या रसूलुल्लाह देखिए हम बड़े हो गए, या रसूलुल्लाह देखिए हम बड़े हो गए। उनका जज्बा देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जंग में लिया। उन्हीं 2 बच्चों ने पूछा, अपने चचा से पूछा, अरे चचा जान, इस काफिरों के हुजूम में अबू जहल कौन है, जरा दूर से दिखाना। जंग शुरू होने से पहले की बात पॉइंट आउट किया उन चचा ने, अरे बच्चों, अबू जहल को तुम पाकर क्या करोगे? नहीं चचा जान, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकता है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वो 2 छोटे छोटे कमजोर, इन्हें तिफली अय्याम तिफल के बच्चे, इन्हें छोटी नौखेज बच्चे, उन 2 बच्चों ने, उनका जोश ऐसा था कि अबू जहल को घोड़े पर जो बैठा होता, घोड़े की टांगे कतर दी और वो उसे नीचे गिरा के उसको मार दिया। उसकी मुंडी सर से जुदा की गई। अबू जहल इतना करा रहा था, इतना करा रहा था, इतना, इन्हें आखिरी सांस निकलने से पहले उसका हाथ एक लटक गया था। उसका हाथ जो है वो अपने पाँव में लेके खींच के निकाल दिया। इतना शदीद दर्द था। 70 काफिर मारे गए, 70 पकड़े गए। 14 सहाबा किराम जंगे बदर में शहीद हो गए। 13 सहाबा किराम को एक कब्र के अंदर, ये एक ही कब्रिस्तान में एक ही जगह दफन किया गया। एक सहाबी, उनकी तमन्ना थी मस्जिद जन्नतुल बकी में आके दफन होने की का इरादा था। उनकी आखिरी सांस चल रही थी तो उनको खच्चर पे डाल के लाद के उनको 150 किलोमीटर दूर से जो घोड़े पर ऐसा आड़ा डाल के, जिस तरह कपड़ों की पोटली इधर आधी उधर आधी डालते हैं, इस तरह से उनको डाल के लाया गया। रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया तो उनको वहीं पर दफन कर दिया गया। मोहतरम हजरात, ये जंगे बदर इस्लाम की पहली जंग जहां पर मुसलमानों को फतेह और कामयाबी मिली। ये जंग अगर ना होती, 14 सहाबा किराम ने अपने खून की लाली को इस्लाम के लिए बहाया ना होता तो आज हम मुसलमान बनकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने वाले बनकर यहाँ नहीं आए होते हम लोग। अल्लाह का करम है कि हम, वरना किस मंदिर में, किस चर्च में, पता नहीं किस गुमराही में, किस बुत परस्ती में हम लोग डूबे हुए थे। अल्लाह ताला ने हमको तौहीद के मतवाले बनाकर, शिर्क को कुफ्र से दूर रखकर अल्लाह ताला ने हमको यहाँ पर लाए हैं। और जंगे बदर में अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, ये इस्लाम के बड़े, सबसे बड़े दुश्मन थे। तमाम को खत्म, यानी बड़े बड़े सरदार वहां पर खत्म हो गए। तो उसका बदला लेने के लिए दूसरी अजीम जंग इस उहद के पहाड़ के दामन में
बहुत बड़ी जंग हुई, 3000 काफिर तैयारी करके आए। वो 17 रमजान 2 हिजरी को जंग बदर हुई, हिजरत के 21 महीने के बाद। फिर हिजरत के 30वें साल काफिरों को पता चला कि पूरे के लोग, बहुत सारे लोग इस्लाम में चले जा रहे, एक एक करके उनको खौफ होने लगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मुसलमानों को इस्लाम में, हमारे भाइयों को, हमारे खूनी रिश्तेदारों को इस्लाम में दाखिल होने से अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? हम तन्हा पड़ जाएंगे, हमारे बुतों की पूजा करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ये तय करके उन्होंने दूसरी बड़ी जंग की। 3000 काफिर आए, 1000 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम थे, उसमें से 350 लोग मुनाफिक निकले। अब आपके भी बहुत सारे घरों में, मोहल्लों में, बस्तियों में रिश्तेदार होते हैं। आपकी आजमाइश के टाइम पर, आपकी मुसीबत के टाइम पर कौन आपकी हेल्प करता है, नहीं करता है, आजमाइश के टाइम पर ही मालूम होता है। इन्हें मीर सादिक बोलते नहीं, मुनाफिक लोग, अंदर एक बाहर एक, दिल में एक, जबान पर एक। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार आपको मिलेंगे, आपके का साथ देने वाले कौन नहीं कौन। इस तरह 350 लोग जो मुनाफिक थे, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई, और ये मुनाफिक लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलझाए रखते थे, इन्हें बिजी रखते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की बात ना करें, कुरान की बात ना करें, अल्लाह और उसके रसूल की बात ना करें। अल्लाह ताला ने कुरान में मना किया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके साथ गपशप नहीं कीजिए, ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनसे मुनाजात बोलते हैं, कुरान शरीफ में इसका तज़किरा है, मुनाजात, इनसे गपशप नहीं करो। ये कान में आके खुसुर फुसुर करते थे, इनसे आप बच के रहिए, ये आपका टाइम जाया कर रहे हैं। आपकी नबूवत का, आपकी पैगंबरी का जो टाइम है, उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो 350 मुनाफिक आइन जंग के टाइम पर निकल गए। बचे कितने? 650। 650 में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो इस छोटी सी पहाड़ी पर ये जो लोग खड़े हैं ना, कुछ लोग, उस पहाड़ी के ऊपर 50 लोग तुम बैठे रहना। अच्छे बेहतरीन तीर चलाने वालों को, मतलब हथियार चलाने वालों को वहां बिठाया। क्या बोल के बिठाया? हमें जंग में कामयाबी मिले या नाकामी मिले, हार मिले या जीत मिले, तुम 50 लोगों का काम है, जब तक मैं ना कहूं नीचे नहीं उतरना। 50 लोग बढ़ गए, 600 लोग बचे। बाकी के उनके अगेंस्ट में कितने लोग हैं? 3000 लोग। बोलिए भाई, रिपीट करते रहिए, दिमाग यानी कम से कम अपने दिमाग के कोनों को खंगालिए, जरा शेक कीजिए। सोने वाले हजरात नींद से बेदार हो, हम जियारतों के लिए आए, सोने के लिए नहीं आए। सोने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया, ऐसा ना हो जाए। आप जियारत के लिए आए, 50 अफराद वहां पर बैठे रहे, 600 अफराद ने 3000 का मुकाबला किया। मुसलमानों को कामयाबी हो गई। मुसलमानों का जो हथियार था, ईमान का पावर, विल पावर को देखकर दुश्मन भागने पर, जब मार पे मार पड़ती रहे तो 600 लोगों ने 3000 को मार भगाया है, तो कितनी बड़ी उनका जोश, उनका वलवला, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में कैसे दफन थी। तो 600 अफराद मार के भगा दिए 3000 अफराद को। वो 50 जो 3000 अफराद में जो भाग गए, अपना माल मता छोड़ के भाग गए। दुश्मन भागता है तो माल मता छोड़ के भागता है। तो जैसे ही वो भागे, बाकी का दुश्मन का जो माल था, काफिर जो चले गए मैदान जंग छोड़ के, 600 अफराद थे। वो माले गनीमत, दुश्मन का जो छोड़ के भागा हुआ सामान था, छोड़ के भाग गए थे, वो सामान इकट्ठा करने में लगे। इसको अनफाल कहते हैं, सूरह अनफाल है कुरान शरीफ में। अनफाल के माने दुश्मन का माले गनीमत। दुश्मन को आप किसी मुल्क पर हमला करते हैं, वो मुल्क का बादशाह पूरी सल्तनत छोड़ के भाग जाता है, तो जो हमला करता है, जो बाजी मार लेता है, वो पूरा माल मता उसकी सल्तनत जो कब्जा करता है उसके हाथ में आ जाती है। तो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। क्या था माले गनीमत? बोलिए, टूटा फूटा जूता, जूते का फीता, तस्मा, लेस, और टूटी फूटी तलवारें, पानी के मशकीज़े, यही चीजें थी, और कोई हथियार ऐसा नहीं था। ऐसा सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं थे। ये माले गनीमत 600 अफराद इकट्ठा कर रहे थे, तो ऊपर जो बैठे थे 50 लोगों को हल्का सा लालच आ गया।
اگر ہم لوگ جلدی کر کے نیچے نہیں اتریں گے تو وہ مال غنیمت سب آپس میں 600 لوگ بانٹ لیں گے, ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو کچھ لوگ اتر گئے نیچے, کچھ لوگوں نے اوپر سے منع کیا, دیکھیے امیر صاحب نے کہا ہے نیچے نہیں اترنا. یہ ان کا نیچے اترنا یہ تاریخ کی سب سے بڑی بھول تھی. جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. خالد بن ولید پیچھے کے راستے سے آئے, آ کے حملہ کر دیا. اس وقت تک کافر تھے. حضرت خالد بن ولید آگے چل کر اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار, بہت بڑے کمانڈر بنے. حضرت عمر کے اسلام میں داخلے پر, حضرت خالد بن ولید کے اسلام میں داخلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست تقویت ملی, زبردست جلا ملی, طاقت ملی, اسلام کو قوت ملی. بہت فخر کرتے تھے حضرت عمر پر اور حضرت خالد بن ولید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 50 افراد کا نیچے اتر جا, 50 پورے نہیں اترے, کچھ لوگ اترے. یہ اترنا ان کی تاریخی بولتی. یہ ہار جو ہے, جیت جو ہے ہار میں بدل گئی. 70 صحابہ کرام اسی میدان میں شہید ہو گئے. احد کے پہاڑ کے دامن میں 17 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ, اس پہاڑ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں فرماتے تھے. درخت آپ کو سلام کرتے تھے. یہ پہاڑ نے آپ کو سلام کیا ہے. اونٹوں نے, جانوروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی بولی آتی تھی, جنات باتیں کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف اور اللہ کی ذات جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں, تمام مخلوقات کے لیے, تمام چرندوں, پرندوں, درندوں کے لیے, حیوانات کے لیے, سب کے لیے اللہ کے رسول, اللہ کی ذات رب العالمین کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین, مرسی تھے پورے عالم کے لیے. تو یہ جنگ جو ہے ایسی شروع ہوئی, ایسے ختم, ایسی ہوئی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. ایک صحابی اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے, ان کا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے الٹے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا. الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے اس اسلام کے جھنڈے کو اپنے منہ سے تھام لیا. جب ان کو آنکھیں برچی لگی تو وہ شہید ہو گئے. ایک صحابی صبح سویرے اسلام میں داخل ہوئے تھے, شام ہوتے ہوتے شہید ہو گئے. ایک اور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی, انہوں نے ابھی تک غسل جنابت نہیں کیا تھا, وہ بھی شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا, اے میرے صحابہ دیکھو میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. ایک طرف سے شہادت کا خون بہ رہا ہے, دوسری طرف سے غسل کا پانی. اور یہ یہاں کے 70 جو صحابہ کرام شہید ہو گئے, ان کی روحیں پرندوں کے جسموں میں داخل ہو گئی اور وہ پرندے جنت کی سیر بھی کر کے آ گئے. اس جنگ کے جو ڈیوریشن تھا, جو تھا, اس میں پرندے جنت کی سیر بھی کر کے آ گئے. ایک اور صحابیہ عورت تھی. یہاں پر عورتیں تھیں. حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. ایک صحابیہ کے 4 مرد شہید ہو گئے. بیٹا شہید ہو گیا, باپ شہید ہو گئے, بھائی شہید, شوہر شہید. ہر وقت جب ان کو خبر دی گئی کہ تمہارے فلاں شہید ہو گئے, تمہارے فلاں شہید ہو گئے, ہر مرتبہ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیسی مثال پیش کی. دیکھیے, چھوڑو میرے بھائی کو, چھوڑو میرے شوہر کو, چھوڑو میرے بیٹے کو, چھوڑو میرے باپ کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کیسی ہے, وہ کیسے ہے آپ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک مثال دو. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیے, یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے, کوئی لڑکی دے نہیں رہا ہے, آپ میری مدد کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ فلاں گلی میں فلاں دروازے پر پہنچو, وہاں جا کر دستک دینا. دستک دی تو وہاں سے ایک والد آئے, ایک لڑکی کے باپ آئے. لڑکی کے باپ سے جیسے ہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے مجھے, میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو باپ نے منع کر دیا, نہ میں تمہیں نہیں دوں, اس لیے کہ وہ کالے کلوٹے تھے لیکن ایمان سے لبریز تھے, ایمان میں ڈوبے ہوئے تھے. جب باپ نے منع کر دیا, جب وہ صحابی واپس لوٹنے لگے تو اندر سے لڑکی نے کہا, اے ابا جان, میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی, میں اسی شخص سے شادی کروں گی جس کا رشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह की मोहब्बत भी होना, रसूल की मोहब्बत भी होना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, एक को मानेंगे एक को छोड़ेंगे तो इस्लाम नामुकम्मल, इनकम्प्लीट। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। ये पहाड़ जो है, जब हजरत हमजा की शहादत हो गई, हजरत हमजा की शहादत कैसी हुई मालूम आपको? ये औरत, हिंदा नाम की औरत के कहने पर उसके आशिक एक काले कलोटे हबशी ने, हजरत हिंदा ने कहा उस हबशी से कि हजरत हमजा की लाश के 11 टुकड़े करो। उस शख्स ने हजरत हमजा के सर को तन से जुदा कर दिया, दोनों हाथ निकाल दिए, दोनों पैर निकाल दिए, दोनों आंखें, नाक काट ली, कान काट लिए, 11 टुकड़े हो गए हजरत हमजा के। और अंदर के जो दिल, गुर्दे, कलीजी जो होते हैं ना, अंदर के पार्ट्स, वो हिंदा ने निकाल के कच्चा चबाकर खा लिया। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि उनके बाप दादाओं का दीन, उनके बुत, मक्के के अंदर जो 360 बुत रखे हुए थे वो बहुत अजीज थे। हम अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह है बेशक, लेकिन अल्लाह की जो सिफात है, रहमान और रहीम की जो सिफात है, वो हमारे बुतों की है। हुदैबिया के जंग, हुदैबिया के सुलह हुदैबिया हुई 6 हिजरी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 6 साल के बाद, मक्का छोड़े 6 साल हो गए थे, वो जाना चाहते थे। ख्वाब में देखा तो उन्होंने सहाबा किराम से मशवरा किया कि मैंने ख्वाब देखा है, मैं काबे की जियारत कर रहा हूँ, तवाफ कर रहा हूँ, उम्रा कर रहा हूँ। काफिरों ने उनको दाखिल होने नहीं दिया, एहराम की हालत में गए। यहाँ से 400-450 किलोमीटर गए। उस जमाने में रास्ता भी ऐसा नहीं था, ऊंटों पर, खच्चरों पर चल के जाना पड़ता था, चल के आना पड़ता था। तो काफिरों ने उनको दाखिल होने से मना कर दिया हुदैबिया के मैदान में। वहां पे तो खून खराबा हो जाएगा, मोहम्मद अगर तुमने दाखिल होने की कोशिश की तो उनको मजबूरन चारों नाचार एक अग्रीमेंट करके, अगर तुमको उम्रा करना है, दीदार करना है, तो तुम अगले साल आना। वो रेटिंग में लिया, एक ट्रीटी, एक कंसेंटमेंट, एक अग्रीमेंट हुआ। वो अग्रीमेंट के मुताबिक रसूलुल्लाह सब वापस आ गए। 8 हिजरी में फतेह मक्का हुआ, मक्का को कैप्चर कर लिया, सबके सब सरेंडर हो गए। जो काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मक्के को कैप्चर कर लिया, फतेह कर लिया, मैंने उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो कहा कि तुम लोग काफिर जो बुत परस्त हैं, मक्का छोड़ के चले जाओ। कब तक? क़यामत तक नहीं आना। वही आ सकता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का पासपोर्ट रखता है। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अजीज चचा थे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला के 11 टुकड़े हुए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बिलक कर, हुक कर, तड़प कर रोए। इन्हें हजरत हमजा की शहादत का बहुत गम हुआ। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा को ले जाकर जन्नतुल बकी में दफन करना चाहते थे, तो ये उहद का पहाड़ आके आपको रोक लिया। या रसूलुल्लाह, हमजा पर मेरा हक है, क़यामत तक लोग आएंगे, मेरी भी जियारत करेंगे और हमजा की भी जियारत करेंगे, यहीं छोड़िए, यहीं पर दफनाया गया। वो कब्रिस्तान है, इस जबल पर, इस पहाड़ पर चढ़ना कोई जरूरी नहीं है, हरगिज चढ़ने की कोशिश नहीं करें, खिलाफ सुन्नत होगा अगर आप चढ़ेंगे। सहाबा किराम को चढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन खुद नहीं चढ़े। तो उस छोटी सी जो मस्जिद है, वहाँ पर छोटी सी मस्जिद है, बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई गई, मस्जिद के सामने कब्रिस्तान है, वहाँ पर जाइए, खबरों की जियारत कर सकते हैं। यानी बाहर से औरत कब्र के अंदर नहीं जा सकती, कब्रिस्तान में नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में कब जा सकती है औरत? बोलो, जब वो मरेगी तो ही कब्र में जा सकती है। और तो उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत के लिए मना किया है। आप किनारे से दूर से खड़े होकर, मर्द हजरात अगर मौका मिला तो कब्रिस्तान के अंदर जा सकते हैं, कब्रों की जियारत करने का बाकायदा हुक्म है। आप जाइए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाइए। एक ही रास्ते से जाना, एक ही रास्ते से आना, मिलकर जाना, गुम नहीं हो जाना। 50 आदमी के में से कोई एक फैमिली मिस हो जाती है, उनकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं होना। तकलीफ, किसी मुसलमान भाई को तकलीफ देना हराम है। लिहाजा आप जाइए, रास्ता देखकर जाइए, बस को नोट कीजिए, बस का स्क्रीन